Welcome to the World United. Welcome to the World United. First request to keep your mobile phones in silent or preferably switched off. I extend a warm welcome to each one of you to the second day of First World Parliament on Spirituality. It is indeed a pleasure and a great way to start our day with Sister Shivani's session in the morning. May I request Sisters of Brahma Kumaris to introduce Sister Shivani to us. Thank you. Pleasant good morning and Om Shanti. Welcome to the session this morning. I am happy and privileged to introduce this morning Sister Shivani. She doesn't need any introduction actually, but just to give a small introduction to you all. She is practicing Raj Yoga meditation for past 15 years and bringing the knowledge of what God the Supreme is giving. She is incorporating in her practical life and translating what God is preaching, and changed her lifestyle and giving the true essence of what God is sharing with all of us. And she completed her engineering, electronics engineering, and presently very closely serving with Brahma Kumaris, as well as you all know her through many television channels, mainly with the series called Awakening with Brahma Kumaris. And I invite Sister Shivani to share with us this morning the wisdom on spirituality. A small announcement before Sister could start. Her speech would be in Hindi as preferred by most of the audience here. Those of you who prefer to listen to it in English, may I request you to shift towards the right, or as in my left side. We have the English translation there, and the organizing committee will help you with the microphones. So those who prefer to listen in English, kindly move to my left side so that we can arrange the speakers for you. Thank you. Shanti. Good morning. Good morning. Om Shanti. Let's take 1 minute of silence. आज का टॉपिक है कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार. And I'm sure since yesterday we have been talking about what is to come. Not what is going on, but what is to come. कौन सी दुनिया चल रही है और कौन सी दुनिया आने वाली है. And we all want that new world to come soon. And we also know कि वो नई दुनिया अपने आप नहीं आएगी. उस नई दुनिया को कौन लेकर आएगा? उस नई दुनिया को कौन लेकर आएगा? हम लेकर आएंगे. तो 1 मिनट साइलेंस में बैठकर उस नई दुनिया को देखते हैं. पहले देखें. Should we look at how that new world be? Close your eyes. There is too much movement around. Just close your eyes and take yourself to that new world. New world. New way of thinking, new way of being. Heaven, Swarg, Satyug, the new age, the golden age. अपने आप को देखे वहां पर. How would my face be?
चेहरा कैसा होगा? Look at the smile on your face. चेहरे की मुस्कुराहट कैसी होगी? एक दूसरे से बात कैसे करेंगे? वहां काम कैसे होगा? How would the relationships be? रिश्ते कैसे होंगे? प्रकृति कैसी होगी? Look at the nature, the weather, the trees, the flowers. Feel the new world. रिलीजन कौन सा होगा? लैंग्वेज कौन सी होगी? ओम शांति। अब धीरे धीरे इस दुनिया में आए, but keep that feeling of that world. कौन कौन थोड़ा सा देख पाया? हाथ उठाए। Good. Karthikeyan ji, what did you see in that new world? What did you see in that new world? What did you see? Any one thing? What did you see in that new world? What do you think will be there in that new world? Peace and harmony. Yes, sister? Prem, love, or? Hanji? Khushiyan, happiness. Okay, what else? This side? Hanji? Happiness. आपने अपना चेहरा देखा उधर? कैसा था चेहरा? कैसा था चेहरा? Serene is the word. Serene, calm, थोड़ी थोड़ी टेंशन. Total silence. रिश्ते कैसे थे? हाँ? रिश्ते कैसे थे? मधुर। और oneness was there. That means there was no diversity. How many religions will be there in the new world? How many languages will be there in the new world? One. Now, we're very clear what is going to come. Unity, love, harmony, serenity on the face, peace, love, happiness, one religion, one language. Final product clear hai. We're clear. This is the product that I want. Who's going to create this product? ये प्रोडक्ट किसने क्रिएट करना है? हमने क्रिएट करना है। कब क्रिएट करना है? कब क्रिएट करना है? अब क्रिएट करना है। We are all talking about new world, new age, नई दुनिया, सतयुग आना है। कब आएगा? कैसे आएगा? कब आएगा? कैसे आएगा? Will it happen
कि सडनली अभी कलयुग चल रहा है एंड सडनली द एंड द बिगिनिंग? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे होगा भगवान कोई ऐसे मैजिक करे, कलयुग फिनिश, सतयुग स्टार्ट? Will it happen? No. So which means it's going to be a very gradual shift. सतयुग से त्रेता युग आया, त्रेता युग से द्वापर युग आया, द्वापर युग से कलयुग आया, पता थोड़ी चला। Even if we just see our life today, 10 years back, today, 20 years back, is there a change in society? What's the change in society today and let's say 20 years back? क्या फर्क दिख रहा है? Society overall. One side, more awakening towards spirituality. Beautiful. What else? Corruption on this side. What else? Malnutrition. What else? Chaos. What is the meaning? Chaos where? And don't look at the world. Look at your world. Your world. It's easy to look at the TV news and say दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है. अपनी दुनिया. There's more stress. What else? Technology development. Beautiful. Awakening, technology development, chaos, stress. What else? Back. Depression कितने लोगों को होता था? और किस एज के लोगों को होता था? राइट? एंड आज किस एज में होता है? आज इस एज में भी हो सकता है. और कितने लोगों को है? Presently, now, the WHO statistics says 1 in every 4 is suffering from depression once in a while, even if they don't know it. 1 in every 4 would mean almost 1 in every family. ये जब हुआ तो कैसे हुआ? धीरे धीरे हो गया, पता ही नहीं चला. धीरे धीरे हुआ ना, ऐसे थोड़ी हुआ आज ऐसे था कल ऐसे हो गया. रिश्ते रिश्ते रिलेशनशिप्स 20 years back एक पूरा मोहल्ला, सबको पता था इसके घर में क्या हो रहा है, इसके घर में क्या हो रहा है, इस सब इकट्ठे हो जाते थे. आज आप अपने रूम में टीवी देखो, मैं अपने रूम में टीवी देखती हूँ. एंड वो तो अपने घर की बात. बाकी ऊपर के फ्लैट में कौन रहता है, नीचे के फ्लैट में क्या हो रहा है, डिवोर्स रेट. नाउ दिस शिफ्ट did not happen suddenly. It was a gradual shift. So any shift in society is happening continuously, gradually, and then suddenly we say, आज समाज ऐसा है. Now we have to shift from this to what we saw just now with eyes closed. ये जो 20 years पहले था और आज जो है, ये किसने क्रिएट किया? Who created this shift? Who created this shift? How many of us are ready to say, I am responsible for what the world is today? Right? Every time I created anger, I got irritated, I created fear, I was jealous of somebody, मैंने किसी को criticize किया, we were creating this world. तो हमने ये वाली दुनिया क्रिएट की. और वो जो अभी आंख बंद करके दुनिया देखी थी, उसको कौन क्रिएट करेगा? हम क्रिएट करेंगे. कब? कब? अभी. अभी करना क्या पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वो सब कुछ जो आंख बंद करके देखा था, वो खुली आंखों से अब करना पड़ेगा. वही तो करना पड़ेगा ना. और क्या करना पड़ेगा? Everything that you saw with your eyes closed, face serene, beautiful smile, and that smile has to come from inside out. Smile तो बहुत लोग करते हैं आज.
ट्रेनिंग भी मिलती है स्माइल करने की, है ना? होटल में जाओ, फ्लाइट पे जाओ, एयर होस्टेस कंटिन्यूसली स्माइल, डजंट मीन वो अंदर खुश है, बट वो जो हमारी नई दुनिया है उसकी स्माइल ही डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? When the thoughts are beautiful and the thoughts are clean, they will show on the face. अब ये सब हमें करना है इस दुनिया में रहते हुए। चैलेंज सिर्फ उतना ही है, थोड़ा सा चैलेंज है। जब वो दुनिया क्रिएट हो जाएगी तो मुस्कुराना, प्यार से बात करना बहुत इजी होगा, क्योंकि सारे वैसे होंगे। Everybody will be like that. The whole society will be like that. But when we are creating that shift, some people will be different and some people will choose to be different to create that new world. तो अब जब आप यहाँ से घर जाएंगे, आपके आसपास जो सारे लोग हैं वो कलयुग में रह रहे हैं, और आपने क्या क्रिएट करना है? सतयुग। इसका मतलब सामने वाला हमसे जो व्यवहार करेगा वो कौन सी दुनिया का होगा? सामने वाला जो हमसे व्यवहार करेगा, द वे दे विल बिहेव विद अस, वो कौन सी दुनिया का होगा? कलयुग। हमें जो व्यवहार करना होगा वो कौन सी दुनिया का होगा? अब ये इजी है, इजी इजी। क्या हुआ? अभी तो बोल रहे थे हम लेकर आने वाले हैं दुनिया, क्या हुआ? इजी? यस और नो? अगर हम नहीं रेडी होंगे वो दुनिया कभी नहीं आएगी, वो दुनिया कभी नहीं आएगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग doesn't mean 15 minutes of meditation, half an hour of satsang. That's all nice, beautiful. Awakening will have to be in the day. When we come into relationships, when we come into interactions, जहाँ सामने वाला एक अलग तरह से व्यवहार करेगा और हमें एक अलग तरह से करना होगा। We say, I'm very peaceful in my meditation. सत्संग में जाकर बहुत अच्छा लगता है। So we are peaceful while meditating, while we are chanting, while we are praying, and after we get up from there, फिर कैसे हो जाते हैं? फिर वही व्यवहार, वही बात करने का तरीका, वही सारी चीजें। फिर अवेकनिंग कहाँ हुई? तो 15 minutes awakening and the remaining sleeping again. And then again next morning awakening, then Sara din sleeping. Awakening means awakening to a new way of thinking, and then living that new way of thinking the whole day. अब देख लो अपने आप को आज सारा दिन। कौन सा डे आज? मंडे, ट्यूसडे, वर्किंग डे। अभी यहाँ से बाहर जाएंगे, अपनी गाड़ी पार्किंग लॉट से निकालेंगे, फिर ट्रैफिक में अपने ऑफिस जाएंगे। पीक टाइम होगा, ट्रैफिक जैम तो मिलना ही मिलना है। ये कलयुग है, ये कलयुग है। सतयुग में ट्रैफिक जैम नहीं होगा, ये सतयुग में नहीं होगा, लेकिन अभी होगा, अभी होगा। अभी इतना ट्रैफिक होगा तो somebody will drive on the wrong side, somebody might even touch the car, somebody might keep on honking पीछे से। इस सब में रहते हुए where do I have to live? बाहर कलयुग होगा, यहाँ क्या चाहिए? यहाँ क्या चाहिए? सत्युग। Now what I have to do is I have to visualize and prepare myself to drive through that traffic today in a Satyugi way. It will not happen on its own. Nothing is magic. Nothing is happening on its own. हम कहते हैं मैं मेडिटेशन करता हूँ तो संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। नहीं बदलेंगे।
Why? Sanskar means kya? I create a thought, I bring it into action, then I bring it into action repeatedly, then it becomes my sanskar. When I sit in meditation, I will say, I am a peaceful soul, I am a pure soul, I am a peaceful soul, I am a pure soul. I am child of God, God is ocean of peace. These are only thoughts. These are only thoughts हैं अभी ये. Thought संस्कार नहीं बनती है जब तक thoughts संस्कार नहीं बनती है जब तक पहले बाहर है वो thought. Then I can say that I am doing meditation since 10 years, 20 years, 50 years. और व्यवहार वैसे वाला ही है. क्योंकि सुबह उठे, आधा घंटा बैठे, I am a peaceful soul, I am a peaceful soul, I am a child of ocean of peace. Meditation पूरा हुआ, बाहर निकले, वही तरीका, वही बात करने का तरीका, वही गुस्सा हो जाना, वही नाराज हो जाना. फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर बैठे, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल. फिर उठे, फिर वही. व्हाट इज हैपनिंग? ये सीडी है, इस पे रिकॉर्डिंग है, इस पे दोनों रिकॉर्डिंग है. रिकॉर्डिंग ऑफ पीस, संस्कार वो भी है, बट जो फ्रेश संस्कार है अभी ज्यादा, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ एंगर. सपोज तो ये दोनों रिकॉर्डिंग है. I create a thought in the morning, I am a peaceful soul. I get up and go to work, I create anger. The anger is already very strong, and every time I get angry, what am I doing to the sanskar of anger? What am I doing to that sanskar of anger? I am making it stronger. पहले ही strong था, I am making it stronger. Next morning again get up, I am a peaceful soul, I am a peaceful soul, I am a peaceful soul. Come out anger. तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, जो गुस्से का संस्कार है वो तो और भी कड़क होता जा रहा है. एंड जो पीसफुल है वो तो सिर्फ अभी तक थॉट लेवल पे ही रह गया. आई एम अ पीसफुल सोल. वी ऑल नो एवरीथिंग. हमें कुछ नया नहीं सीखना है अब. कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें नहीं मालूम है अभी. सिर्फ जो छोटा सा स्टेप रह गया है, जो सब कुछ मालूम है, उसको कॉन्शियसली सारा दिन में लाना है. तब तक संस्कार नहीं बदलेंगे. आई एम अ पीसफुल सोल, which means now when I drive to work, drive as a peaceful soul. Then when I go to work, somebody will make a mistake, somebody will cheat me, somebody will do something else, somebody will speak badly to me, कोई मेरी insult करेगा. How will I behave? How will I behave? Peaceful soul. Once I bring that into action, it will create an impression. Then tomorrow again I'll bring it into action. Then again into action. तो धीरे धीरे शांति का संस्कार स्ट्रॉन्ग होता जाएगा. प्लीज रिमेंबर, गुस्से का संस्कार भी अभी उधर ही है. नॉट गॉन अवे एनीवेयर. लेकिन अब हमारे पास दोनों संस्कार अच्छी तरह से है रिकॉर्डिंग पे. इट्स लाइक अ सीडी. गुस्से वाला गाना भी उस पर है, शांति वाला गाना भी उस पर है. अब सिर्फ हमें सारा दिन में चूज करना है कि हमें कौन सा गाना बार बार. जितना शांति के संस्कार को फिर यूज करते जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और गुस्से वाला संस्कार वीक होकर बैकड्रॉप में फिर भी पड़ा रहेगा. एंड फिर कभी कभी वो टक करके ऐसे फिर से आएगा. The soul will always carry all its sanskars. संस्कार हट नहीं जाता है.
इट इज जस्ट कि कौन सा संस्कार इमर्ज्ड है एंड कौन सा संस्कार नीचे दबा हुआ है विल डिपेंड ऑन विच संस्कार इज यूज्ड मोर ऑफन. यू नो इट्स लाइक जैसे किचन में शेल्फ पर बॉटल्स पड़ी है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. जो इंग्रेडिएंट को ज़्यादा यूज़ करेंगे वो वाली बॉटल सामने आ जाएगी, और जो इंग्रेडिएंट को यूज़ नहीं करेंगे वो बॉटल पीछे चली जाएगी. और कई बार वो इतनी पीछे चली जाती है हमें लगता है वो. आज यही हुआ. पीस पीछे चला गया, लव पीछे चला गया, हैप्पीनेस पीछे चला गया, एंड वी स्टार्टेड गोइंग आउट इनटू द वर्ल्ड सेइंग शांति दो, प्यार दो, खुशी दो. इंग्रेडिएंट अपने घर पे था, बाजार खरीदने चले गए. क्यों? बहुत पीछे चला गया. क्यों पीछे चला गया? नॉट यूज्ड. Now what do I have to do? I start using that ingredient. जैसे ही उसको यूज करना शुरू करेंगे वो सामने आ जाएगा. जैसे ही वो सामने आ जाएगा दूसरा इंग्रेडिएंट पीछे चला जाएगा, और धीरे धीरे हम एक ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे कि फिर हमें कॉन्शियसली नहीं करना पड़ेगा. बीइंग पीसफुल, लवफुल, forgiving will become our natural संस्कार. But this is a shift. ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ये ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है. ये सिर्फ मेडिटेशन करने से भी नहीं होना. मेडिटेशन is the power, the technique which I use to start emerging that thought, to remind myself of who am I, and create that power, and then come out into the day and bring out that thought into action. Most important thing which we are forgetting, till the thought comes into action repeatedly, it cannot become a sanskar. अच्छी अच्छी बातें सुनी, अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, अच्छी अच्छी बातें सुनाई भी औरों को, अच्छी भी लगी, but they are only thoughts. They are only thoughts. Thoughts translated into action repeatedly will then go and become my sanskar. तो अब वापस जाएंगे. Everybody else is going to use a different ingredient. वो लोग दूसरा इंग्रेडिएंट यूज करेंगे. वो लोग क्या यूज करेंगे? जोर से बोलेंगे, झूठ से भी बोल सकते, इंसल्ट भी कर सकते हैं, प्यार से बात नहीं करेंगे. उनके वो इंग्रेडिएंट आगे है. हम कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करेंगे? नाउ इज दिस इजी? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, इज दिस पॉसिबल? Is this possible? Yes. Easy? It's possible by practice. Visualize again. Close your eyes again. Again. Now visualize. Going back to this world today. यहाँ से उठेंगे, कहाँ जाना है? अपनी अपनी गाड़ी में, ऑफिस, घर, रास्ते में ट्रैफिक, घर पर बच्चे, ऑफिस में कौन कौन है, क्या क्या काम बचा हुआ है करने का, लोग कैसे बात करते हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं. Look at all of them. And now look at yourself there in a new way. नया तरीका जीने का. Chaos है बाहर, but look at yourself in that. Serene face, smile on the face,
forgiving the other person, understanding why they made a mistake, understanding they are not able to change their sanskar, compassion for them, talking loving. देखिए अपने आप को उनको समझते हुए, मुस्कुराकर प्यार से बात करते हुए। वो फिर भी वैसे ही बात करते हैं, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं? With the knowledge inside, I have a choice which sanskar to use. I have a choice how to be. ओम शांति। कौन कौन देख पाया? How many were able to see the scene? हाथ उठाओ। ओके। वो लोग वैसे ही थे जैसे आप पीछे छोड़कर आए? Could you see yourself in a different way? How many could see themselves in a different way with the other people, the way we have left them behind? देखा अपने आप को? Yes? Possible? Possible? Is it possible? कौन रोकेगा हमें वैसा करने से? कौन रोकेगा हमें वैसा करने से आज सारा दिन में? कोई भी नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं रोकेगा। अब जो अभी आंख बंद करके किया, इसको सारा दिन में हर 1 घंटे के बाद कर दो। Do it after every 1 hour. Take out 1 minute. Close your eyes. See the situation. See yourself in that new situation. And धीरे धीरे you don't need to close your eyes then. Because लोगों को पता चलेगा ना, बार बार आंख बंद करके बैठते हैं। Don't have to do it. धीरे धीरे eyes खोल के भी visualize कर सकते हैं। Chaos outside. कोई गलत तरह से बात कर रहा है, कोई मेरा कहना नहीं मानता है, कोई उल्टा जवाब दे रहा है। This is how I am going to be. This is how I am going. अगर पहले अंदर नहीं हो पाए, सिर्फ बाहर भी कर लो तो भी अचीवमेंट। मतलब अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन प्यार से बाहर बात कर लो तो एटलीस्ट गुस्से की थॉट को एक्शन में नहीं लाया। That is also an achievement. गुस्से की थॉट को एक्शन में नहीं लाया, फिर धीरे धीरे गुस्से की थॉट को भी खत्म कर देंगे। जब वो एक्शन में आ जाती है, इट बिकम्स स्ट्रोंगर, इट बिकम्स स्ट्रोंगर। बट अगर वो एक्शन में नहीं आए, इट विल फिजल ऑफ, इट विल फिजल ऑफ। तो एटलीस्ट ये ध्यान तो हमें आज रखना ही है कि अंदर बुरा भी लगा, बोलना नहीं, बोलना नहीं, चेहरे पे नहीं आने देना। यू नो लाइक जो कस्टमर केयर सर्विस में कैसे होते हैं, होते हैं ना, देखा है उन सबको। जो सेल्समैन दरवाजे पे खटका कर आता है, उसका चेहरा कैसा होता है? मैम प्लीज आप ये ले लो, ये ले लो। हम धाड़ करके दरवाजा बंद कर देते हैं उस पर, कहते हैं कोई बात नहीं, थैंक यू, मैं कल फिर से आऊंगा। नहीं करते, फोन करेंगे, प्लीज ये क्रेडिट कार्ड ले लो, प्लीज ये ले लो। वी से वी आर बिजी। ओके मैम, व्हेन शुड आई कॉल? नो, डोंट कॉल मी। ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल कॉल एट 7 in the evening. बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। एंड दे आर डूइंग इट क्योंकि उनको मालूम है एक बार भी अगर उन्होंने गुस्से का रिस्पॉन्स गुस्से से दे दिया तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उनका नौकरी जाएगी। एक नौकरी के लिए वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। उनको अंदर से बुरा लगेगा, लेकिन वो बाहर नहीं आने देंगे। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। बिकॉज इफ आई लूज माई जॉब, आई लूज माई मनी, एंड इफ वी लूज आवर हैप्पीनेस एंड लव एंड हार्मनी। अगर वो पैसे के लिए कर सकते हैं, हम खुशी के लिए कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो भी तो हमारे बीच के लोग हैं ना,
और उनके साथ तो लोग कितना रूडली बात करते हैं, कितना रूडली बात करते हैं। फ्लाइट में देखो, रेस्टोरेंट में देखो, कस्टमर केयर सर्विस में देखो, लोग क्या हैं? क्योंकि लोगों के अंदर इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है कि किस पे निकालेंगे। तो जो कस्टमर केयर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है, इट ऑल लॉट्स ऑफ इट कम्स आउट ओवर देयर बिकॉज वी फील वी बॉट देम बाय पेइंग मनी टू देम. We feel they have to take anything that we give them because we know that irrespective of what we give them, what is going to come from there? What is going to come from there? Smile. Smile. तो इस चीज का कई बार सामने वाला फायदा भी उठाएगा और आपके घर में भी फायदा उठाएंगे इस बात का. जब उनको पता चल जाएगा कि यहाँ से हम कुछ भी दें, वहां से क्या मिलने वाला है, वहां से क्या मिलने वाला है, वो तो प्यार से ही बात करेंगे. तो कई बार द अदर साइड कैन टेक लिबर्टी ऑफ बीइंग इवन मोर एंड दैट इज समथिंग व्हिच स्टॉप्स अस. देन हम कहेंगे क्या ये तो बार बार ऐसे ही बात करते हैं. इट्स अ चॉइस. दे आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड. आई एम क्रिएटिंग अ डिफरेंट. एंड वेयर एम आई क्रिएटिंग? दुनिया में सत्युग कब आएगा इज नॉट इम्पोर्टेंट. इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो तो आ ही जाएगा. मुझे यहाँ सत्युग लाना है, मुझे यहाँ सत्युग लाना है. और जब यहाँ सत्युग आएगा फिर धीरे धीरे मेरे घर में सत्युग आ जाएगा. एक चीज पक्की है इस टाइम पर, पीपल आर ओनली कॉपिंग ईच अदर. करते नहीं करते. आपने कभी देखा है कि आप किसी से प्यार से बात करो तो वो भी एकदम से प्यार से बात करने लगता है? होता है नहीं होता? हाउ मेनी हैव एक्सपीरियंस दिस? होता है. वेरी गुड. आप किसी को ऐसे करके चले जाओ, वो भी ऐसे करके जाता है या नहीं जाता है? करते नहीं करते? करते. मतलब लॉ कौन सा चल रहा है आजकल? कॉपी द अदर पर्सन. कॉपी द अदर पर्सन. दिस इज हाउ द न्यू वर्ल्ड विल गेट क्रिएटेड. ये इसी लॉ पे वर्क हो जाएगा न्यू वर्ल्ड, बिकॉज एवरीबडी इज कॉपिंग द अदर पर्सन. अगर कुछ लोग भी नए तरीके से चलना शुरू कर दें तो बाकी लोगों ने तो वैसे भी क्या करना है? बाकी लोगों ने वैसे भी क्या करना है? कॉपी करना है. आपको कॉपी करना है. आज सारा दिन में इसको तो ट्राई करके देख लो. दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला. आज सारा दिन में हर एक से प्यार से बात करो, हर एक से प्यार से बात करो. सामने वाले का मूड ठीक नहीं भी होगा तो वो कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? और कुछ नहीं तो आधी स्माइल तो दे ही देगा. देगा या नहीं देगा? दे ही देगा. एंड विच मीन्स योर बीइंग इन द न्यू वर्ल्ड has just triggered someone else also to start being in the new world. This is how it happens. When we change, the world changes. Because they will only copy. इस समय टाइम ही नहीं है किसी के पास सोचने के लिए बहुत ज्यादा. कोई नहीं सोचता है इनके साथ कैसे व्यवहार करना है. कहते कॉपी करो. जो प्यार से बात करता है उससे प्यार से बात करो. जो नहीं बात करता भाड़ में जाए, नहीं बात करो उससे. छोड़ो. पर सोचेगा कौन? Language. That is the language. उसने मुझे नहीं बुलाया, ना बुलाए, मैं भी नहीं बुलाऊंगा उसको. छोड़ो. इसने मुझे बुलाया, अच्छा इसको मैं भी बुलाऊंगा. प्यार से करो. When everybody is copying, please make use of that. इस चीज को यूज करना चाहिए. बट उसका ध्यान सिर्फ ये रखना होगा हम उनको ना कॉपी करने लग जाएं. See, it's a continuous copying game. The way she will talk to me, I talk to her, and then the way I talk to her, she again talks to me like that. So we go into this reciprocation of energy, copying. But now if she doesn't talk nicely to me and I copy her that time, and instead of copying, if I say, okay, stop, she did not talk nicely to me, but I will be nice to her. She came and sat here, didn't even look at me, didn't even acknowledge my presence. मेरी तरफ देखा भी नहीं, पहचाना भी नहीं, विश भी नहीं किया. कोई बात नहीं.
मैं जाकर स्माइल करके विश करूं आप ठीक, वो स्माइल तो करेंगे ना, थोड़ा सा करेंगे या नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज, करना ही पड़ेगा, वो करेगा ही। एंड जैसे ही वो थोड़ा भी स्माइल करेगा, आपकी स्माइल और बड़ी हो जाएगी। जैसे आपकी और बड़ी हो जाएगी, उसकी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। शी हैज नाउ जॉइंड योर न्यू वर्ल्ड। इट हैज टू हैपन ओनली दैट वे। देयर इज नो अदर वे ऑफ चेंजिंग दिस वर्ल्ड। Otherwise, there is too much pain. There is too much pain. If everybody will go on copying pain for pain, hurt for hurt, anger for anger, we are only strengthening the Kalyug then. And अगर हम कहेंगे क्या करें, सारे ही ऐसे हैं, ये भी ऐसा है, वो भी, then we are only strengthening the old world, talking about the new world. We can keep talking about the new world. Today we have to start creating the new world. If she doesn't talk properly to me, she just does this, shrugs her shoulder, walks off, and I go and talk nicely to her, stop me. What stops us? कौन रोकने वाला है? कौन रोकता है हमें उस टाइम? हमारी ईगो क्या बोलेगी उस टाइम? हमारी ईगो क्या बोल देती है उस टाइम? क्या बोलेगी ईगो? बताओ ना, अंदर बोलती है ना कुछ कुछ। हाँ, क्यों मैं पहले? वेरी गुड। उन्होंने नहीं किया, क्यों मैं पहले करूं? आंसर, क्योंकि मन जब भी क्वेश्चन देगा उसको आंसर दे दो प्यार से। मन ने कहा मैं क्यों पहले करूं, उन्होंने प्यार से नहीं बात की। आंसर, हाँ, वो ऐसे ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। माई माइंड सेज उन्होंने प्यार से नहीं बात की, मैं क्यों करूं? आंसर, वन डे मैं प्यार से बात करूं, नो गारंटी। माइंड इज सेइंग उन्होंने नई बात की, मैं क्यों प्यार से बात करूं, क्यों करूं प्यार से बात? आंसर, क्योंकि प्यार से बात करके मुझे अच्छा लगेगा। फिनिश्ड, दैट्स द आंसर। मुझे अच्छा लगेगा, आई एम गोइंग टू फील वेरी नाइस देन एंड देयर। नेक्स्ट मन क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन मैं बार बार प्यार से बात करूं, वो बार बार ऐसे बात करेंगे। एंड देन वी हैव अ लाइन व्हिच सेज, देन दे विल टेक मी फॉर ग्रांटेड, व्हिच आई हैव नेवर अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, बट इट्स अ लाइन। दे विल टेक मी फॉर ग्रांटेड। दे विल टेक मी फॉर ग्रांटेड मीन्स they will take it for granted that I will always be nice. If people around me can start taking it for granted that I will always be nice, there cannot be anything better than that. Which means we have reached somewhere. It means somewhere that people are able to take it for granted कि इनके साथ कैसे भी करो, ये प्यार से बात करेंगे, this is success. Achievement, and we have given them a chance to believe that by doing it many times. So let them take it for granted. Let them take it for granted. ये तो अच्छा है ना, क्योंकि अब हमारा वो संस्कार बन गया है। हमारा संस्कार बन गया है प्यार से बात करने का, तो फिर हम गुस्सा नहीं करेंगे, तो they'll have to take it for granted. क्योंकि संस्कार ही वही है, तो वही एक्शन में आने वाला है। तो मन जब भी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन को तुरंत क्या करना है? आंसर देना। आंसर देना। क्रिएटिंग अ न्यू संस्कार रिक्वायर्स अ लिटिल अटेंशन। पुराना संस्कार ऑटोमेटिक तरीके से आ जाता है। संस्कार कैसे बनता है? माइंड में दो थॉट्स क्रिएट होती है, झूठ बोलो नहीं बोलो, सिगरेट पियो नहीं पियो। ये दो थॉट्स क्रिएट करते हैं।
फिर दोनों अपना अपना केस सामने रखते हैं। एक थॉट, पिया तो क्या होगा, एक बार पीने से कुछ नहीं होता है। दूसरा थॉट, नहीं पिएगे तो आदत पड़ जाएगी, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये दोनों लॉयर ऐसे खेलेंगे, माइंड में दोनों क्वालिटी ऑफ थॉट्स चलेंगी। इंटेलेक्ट बुद्धि दोनों में से एक को चूज करेगी, मतलब एक लॉयर जीतेगा। सपोज ये थॉट जीत गई कि एक बार लेने से कुछ नहीं होता है। इंटेलेक्ट ने कहा कोई बात नहीं, एक बार ले लो। थॉट, इंटेलेक्ट कम्स इनटू एक्शन। सिगरेट पिया, अच्छा लगा, टेंशन थी, सिगरेट पिया, मन ठीक हो गया, इंप्रेशन रिकॉर्डेड। जब टेंशन थी, सिगरेट पिया, अच्छा लगा, दैट इंप्रेशन गेट्स रिकॉर्डेड देयर। नेक्स्ट टाइम फिर टेंशन आएगी, क्योंकि वो तो रोज ही आती है। फिर मन में दो थॉट उठेंगे, पियो नहीं पियो। इंप्रेशन रिकॉर्डेड होगा, पीने से टेंशन खत्म हुई, मन शांत हो गया था। तो वो वाला लॉयर थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। वो कहता है लास्ट टाइम याद है, अच्छा लगा था पीने के बाद। फिर इंटेलेक्ट ने अगर उस दिन फिर से कह दिया, चल एक बार कोई बात नहीं, 5, 10, 15 टाइम्स मैक्सिमम। उसके बाद वो बन गया संस्कार। एक बार वो बन गया संस्कार, नेक्स्ट टाइम जब टेंशन होगी तो क्या नहीं होगा, दो लॉयर नहीं उठेंगे, दो लॉयर नहीं उठेंगे, इंटेलेक्ट नहीं उठेगी, क्योंकि दो लॉयर ही नहीं तो जज की जरूरत नहीं, दो लॉयर नहीं तो जज की जरूरत नहीं। एंड विच मीन्स स्टिमुलस आया, वो संस्कार आ गया बाहर। दिस इज कॉल्ड ऑटोमेटेड वे ऑफ लिविंग, ऑटोमेटिक। और तब उसके लिए हम कहेंगे इन्होंने अपनी कॉन्शियंस को क्या कर दिया, दबा दिया। इसी तरह जीवन में कई जब पहली बार गुस्सा किया होगा, सोचा होगा गुस्सा करे नहीं करे, गुस्सा करे नहीं करे, लेकिन अब वो गुस्सा हमारा क्या बन गया, संस्कार। अभी थॉट नहीं क्रिएट करते, गुस्सा करे नहीं करे। नाउ वी विल हैव टू अवेकन दोस टू लॉयर्स अगेन. We will have to move away from the automated way of living to a conscious way of living, which this sleeping से awakening. Sleeping मतलब सब कुछ अपने आप हो जाएगा. जैसे हम रोज घर से ऑफिस जाते हैं, सेम रास्ता, सेम ट्रैफिक सिग्नल, सेम स्पीड ब्रेकर, सेम सब कुछ, हम बिना सोचे एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते, नहीं पहुंचते, पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, है ना. कभी कभी सोचते 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 कब घर आ जाता है, घर पहुंच गए. दिस इज कॉल्ड स्लीपिंग वे ऑफ ड्राइविंग. स्लीपिंग, यू कैन बी थिंकिंग, टॉकिंग ऑन द फोन, डूइंग एनीथिंग, आप घर पहुंच जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. दिस इज ऑटोमेटेड वे ऑफ ड्राइविंग. अब आज जाना है, नई जगह जाना है, रास्ते नए, ट्रैफिक सिग्नल नए, स्पीड ब्रेकर पता नहीं कहाँ आ जाएगा अचानक से. अब कैसे ड्राइव करना पड़ेगा, अब कैसा ड्राइव करना पड़ेगा. अब कोई फोन आएगा, बोलेगे रखो बाद में बात करता हूँ, आई हैव टू सी वेयर आई एम गोइंग टुडे. नाउ यू कैन नॉट बी थिंकिंग एनीथिंग एल्स एंड ड्राइविंग. योर फुल अटेंशन विल बी ऑन द ड्राइविंग. दिस इज अवेकनिंग. अब जागृत अवस्था में गाड़ी चला रहे हैं. इसी तरह जीवन की गाड़ी सारा दिन, सेम वे ऑफ ड्राइविंग. बात हुई, गुस्सा तो आना ही है, कुछ बोला, रोना तो आना ही है, इसने मेरे बारे में बोला तो मैं उसको बोलूंगा. ऑटोमेटेड वे ऑफ लिविंग. इसके लिए कोई मेहनत नहीं. अब आज से न्यू वे ऑफ ड्राइविंग. न्यू वर्ल्ड मीन्स न्यू रोड. स्टिमुलस विल रिमेन द सेम. टुडे जागृत अवस्था में, लेट्स नॉट लेट द ऑटोमेटेड संस्कार कम आउट ऑन अ. दिस रिक्वायर्स ओनली वन थिंग, अटेंशन. अटेंशन.
till that sanskar becomes my permanent sanskar. Once peace becomes my permanent sanskar, go back in the automated way of living. Go back into the automated way of living, and that is when the people will start taking us for granted. Because then peace has become my automatic way of living. मैं सोचता नहीं हूँ गुस्सा करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि गुस्सा is over. लेकिन before shifting from here to here, we'll have to drive consciously, carefully, attention. ऐसा नहीं कर सकते खड़े किसी और के सामने सोच कुछ और रहे हैं. Now not possible. And this is called being in the present moment. You know, इतना सुनते हैं आजकल, be in the present moment. समझ ही नहीं आता क्या मतलब है उसका. समझ नहीं आता. Be in the present. Be in the present means you'll have to be alert, aware, attention in every moment. Stimulus आया, मुझे कैसे respond करना है. पूरा finish. करेंगे आज? एंड प्लीज रिमेंबर, कोई हमें नहीं रोक सकता है. कलयुग से सतयुग में जाने से पहले एक और काम भी करना है. हमारे जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हुए हैं सारे, दिवाली के दिन जब दिवाली आनी है तो क्या करना पड़ता है? हिसाब किताब चुकतो. पास्ट फिनिश्ड, नया अकाउंट शुरू. रावण को जलाया. सी हाउ द ऑर्डर विल गो. रावण को जलाया, सफाई की, घर की सफाई की, नए कपड़े, नए बर्तन, सब कुछ नया खरीदा. पुराना हिसाब किताब पूरा किया, नया शुरू किया, तब लक्ष्मी आएगी. एंड वो दिवाली है. दिवाली मीन्स कमिंग ऑफ द न्यू वर्ल्ड. रावण को फिनिश. रावण कहां पे? 10 सिर. ऑल माई 10 वाइसेस सिटिंग हियर. रावण को फिनिश. नए कपड़े, नए बर्तन मीन्स क्या? नया, नई सोच, नई व्यवहार, नया संस्कार. सफाई किस चीज की? आप देखो दिवाली पे कैसे सफाई करते हैं. कोने कोने में जाके सफाई करते हैं. मतलब मन के कोने कोने में कहीं भी कुछ छुपा के रखा है, लक्ष्मी नहीं आएगी. थोड़ा भी कचरा नहीं होना चाहिए. यहां तक कि घर की पेंटिंग ही कर देते हैं नहीं, ताकि सारा साफ हो जाए अच्छी तरह से. इधर भी पेंटिंग करनी पड़ेगी. पुराना सारा कचरा निकलेगा, नए संस्कार क्रिएट होंगे. पुराना हिसाब किताब चुकतू, नया अकाउंट शुरू, तब लक्ष्मी आएगी. और लक्ष्मी कहाँ आएगी? लक्ष्मी मीन्स डिवाइन क्वालिटीज, डिविनिटी, प्योरिटी. वो यहाँ आएगी. हर साल दरवाजा खोल के रखते थे. कोई आया क्या रात को? फिर भी खोलते हैं हम हर साल. लक्ष्मी आएगी. दरवाजा बंद नहीं करना, लक्ष्मी आएगी. और दिया जलाना. दिया बुझना नहीं चाहिए. तो कौन सा दिया जलाना? मैं आत्मा हूँ, अवेकनिंग. वो दिया थोड़ा भी ऐसे टिप 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 होने लगा तो क्या करना है? फटाफट ज्ञान का ऑयल डाल के वो दिए को वापस जगाना है. दैट इज दिवाली. दरवाजा खोलने से टिकटॉक करके थोड़ी कोई लक्ष्मी आती है अंदर. वी डू इट एवरी ईयर. लक्ष्मी आएगी. लक्ष्मी यहाँ आएगी. डिविनिटी, प्योरिटी. और लक्ष्मी की फोटो कैसे दिखाते हैं? कमल पुष्प पे खड़ी हुई. क्यों? Have we ever thought, can anybody stand on a lotus flower? फिर क्यों देवी देवताओं को कमल पुष्प से खड़ा हुआ दिखाते हैं? That is a symbol. It's symbolic. Nobody was actually standing on a lotus flower. Symbolic. क्योंकि
कमल की क्या विशेषता है? कचरे में रहकर इतना ब्यूटीफुल है। आज हमें अपना जीवन वो कमल की तरह बनाना है। रहना कलयुग में है, कचरा होगा, गंदा पानी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उस सब में रहना है, छोड़ना नहीं है। उसको छोड़ना नहीं है, छोड़ के कहीं चले जाए नहीं, उसमें रहकर लोटस फ्लावर, तब लक्ष्मी के गुण यहाँ आएंगे। तो दिवाली अब सेलिब्रेट करनी है, अब सेलिब्रेट करनी है। तो सारे जो पुराने हिसाब किताब हैं, पुराने हिसाब किताब मीन्स द ओल्ड वे ऑफ रिलेशनशिप्स, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज जो चल रहा है, दिस इज अ पास्ट कार्मिक अकाउंट विच वी हैव बीन कैरिंग फॉरवर्ड फ्रॉम मेनी मेनी बर्थ्स। अब उस पुराने तरीके को क्या करना पड़ेगा? फिनिश, नया तरीका शुरू, विच मीन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हमारा कुछ भी हुआ होगा उनके साथ, किसी ने धोखा दिया, गलत किया, मेरे साथ बहुत 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 गलत किया किसी ने, एंड बहुत कुड बी एनीथिंग, लेकिन दैट इज अ रिटर्न ऑफ अ पास्ट कार्मिक अकाउंट. Today I will have to forgive. Because if I do not forgive, that karmic account is not finishing, it's carry forward. सत्युग में कलयुग का कार्मिक अकाउंट नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा. तो कलयुग से सत्युग में जाने के लिए पुराने हिसाब किताब को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना ही पड़ेगा. We need to forgive them. When we forgive people, we be very light. And we have to travel light into the new world. आपके पास कोई है जिसको आपको forgive करना है? है कोई जिसको forgive करना है? Yes? Now, why should I forgive? फिर मन बोलेगा, मैं क्यों forgive करूं? उनकी गलती कितनी बड़ी थी, उन्होंने धोखा दिया, मेरा पूरा परिवार बिखर गया. I met a lady and we were talking on forgiveness in the program, and she came back to me after the program. She said, is it really possible to forgive? I said, there's no other choice. There's no other choice. If you want to be light, happy and finish that kachara which is lying here, I have to forgive. She said, my brother murdered my parents. Should I forgive? I said, what's the other choice? She said, other choice is hatred. Hatred, so much hatred for him. He murdered both his parents. Hatred inside. अब ये hatred को पकड़ के रखेंगे और सोचेंगे तो natural है ना, hatred, he murdered my parents. Hatred. लेकिन hatred कहाँ होगी? यहाँ. उस आत्मा ने जो किया उसको तो उसके कर्म का फल मिलना ही है, लेकिन हेट्रेड पकड़ के रखकर मेरा कौन सा कर्म बन गया? हेट्रेड यहाँ पकड़ के रखकर बन गया, मेरा भी हेट्रेड का बना, मुझे उसका फल मिलेगा, मुझे उसका फल मिलेगा. What he did to his parents was a karmic account between them. I have to choose now what I can do. So irrespective of बात कितनी भी बड़ी हो, the law of the country will take care of the other person, the law of karma will also take care of the other person. I only need to take care of myself. The minute I say I forgive, I have chosen a new karma, a new destiny. उनके साथ जो होना है वो फिर भी होना है. You know, when we say God forgives, ये भी बहुत समझने की जरूरत है. God forgives means हमने जो गलत किया उसका फल हमें नहीं मिलेगा. God forgives, हमें फल मिलेगा ही मिलेगा. लेकिन God forgives means God हमारी गलती को यहाँ पकड़ के नहीं रखता है. हमने कितना भी गलत किया हो, God हमारी गलती को पकड़ के नहीं रखता है, which means He loves us unconditionally. Of what we have done, that is God forgives. लेकिन फिर भी हमने जो गलत किया था उसका फल तो हमें फिर भी मिलने वाला है,
फिर भी मिलने वाला है. Similarly, other people around us will make mistakes, may have done something wrong. I forgive means I will not hold it here. अपने चित्त को साफ करना है. Past karmic account खत्म. This cannot go into the new world. You know, जैसे एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी पे कुछ कुछ चीजें लिखी होती हैं, ये आगे नहीं जा सकती है. या तो खुद आगे जाओ या बाहर पीछे बैठे रहो, लेकिन यू कैन नॉट क्रॉस दैट सिक्योरिटी विद दैट थिंग. आपको उन चीजों को पीछे छोड़ना ही, फेंकना ही पड़ेगा. तो न्यू वर्ल्ड में जाना है तो इस पुरानी बातों को क्या करना पड़ेगा? इस पुरानी सारा जो यहाँ पकड़ के रखा है, उसने ये किया, उसने ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, ये सारी बातों को इधर छोड़ना पड़ेगा. हल्का, लाइट, forgive, we are in the new world. And जैसे we forgive, love to that soul, help that soul to overcome the pain that they are going to get in return of their karma. You know, the love helps the other person to cross. God's love helps us to cross the consequences of our karma. हमारे कर्म के फल हमारे सामने आते ही आते हैं, लेकिन भगवान का प्यार हमें ताकत देता है उस सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए. इसी तरह अगर हम औरों को प्यार देंगे, इवन इफ दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, वो उनको ताकत देगा उस सिचुएशन को क्रॉस करने के लिए. दैट इज आवर रोल. हम भगवान के बच्चे हैं. वी से ना, डिविनिटी इज इनसाइड मी. हम उसके बच्चे हैं, तो जो उसका बिजनेस वही अपना बिजनेस. ऐसे ही करेंगे ना, जैसा पिता वैसा ही हम. जैसे वो सबके साथ करता है वैसे ही हमें सबके साथ करना है. वैसे ही हमें सबके साथ करना है. लव अनकंडीशनली, विच मीन्स डू नॉट होल्ड. सो टुडे we are not returning from here in Kali Yuga. We are not returning back to Kali Yuga now. Where are we going to go now? Satya. Promise? Promise yourself. Promise this to yourself and keep attention. It's very easy. Never ever write and never ever say, try करेंगे. Try नहीं कर सकते. ट्राई नहीं कर सकते. टाइम नहीं बचा. अब टाइम नहीं बचा. ट्राई करेंगे मतलब हम फिर कलयुग में जा रहे हैं. सत्युग में जाना है तो बोलना है करना ही है, करना ही है. लेट्स सिट बैक अगेन फॉर 1 minute. विजुअलाइज द डे. कमल पुष्प के ऊपर आज हम कमल पुष्प पे जाएंगे कि दुनिया भले कलयुग है, हम सत्युगी दुनिया के रहने वाले हैं. एंड विच मीन्स सत्युगी संस्कार, दिव्य संस्कार, डिविनिटी. सी योरसेल्फ द होल डे. डिवाइन सोल, प्योरिटी नेचुरल, पीस, लव नेचुरल संस्कार है. देखिए अपने आप को सारा दिन सबके साथ. चाहे कोई भी बात आए, कुछ भी हो जाए, न्यू वे ऑफ थिंकिंग, न्यू वे ऑफ बीइंग. पुरानी सारी बातें जो पकड़ कर रखी थी, आज finished. Emerge that soul before you. उस आत्मा को अपने सामने लेकर आओ. And send them vibrations of love and compassion. मेरी तरफ से ये हिसाब किताब पूरा हुआ.
Om Shanti. Thank you so much. Thank you, sister.